ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, पर चिंतन की बातों से मुक्त। क्योंकि वर्तमान समय संगम युग के अंतिम समय चल रहे हैं, तो कभी कभी हम विरत पर चिंतन करके अपना कभी टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम पर चिंतन से कैसे मुक्त बने। இப்பொழுது சங்கம யுக நேரம் எல்லாருக்கும் கேக்குதானே? இப்பொழுது சங்கம யுக நேரம், கடைசி நேரம். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பரச்சிந்தனையிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி? இந்த டாபிக்ல நமக்கு பாய்ஜி சொல்றாங்க. जैसे कल भी बाबा की मुरली में कहता मुक्त बनो, लेकिन मुक्त सबसे पहले हमें परचिंतन से मुक्त बनने की जरूरत है। क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। நேற்று கூட பாபா சொன்னாங்க முக்தி அடையுங்கள் அப்படி சொன்னாங்க. முதல்ல எதுல இருந்து முக்தி அடையணும்னா பரச்சிந்தனையிலிருந்து முக்தி அடையணும். ஏன்னா பரச்சிந்தனை தான் வைப்ரேஷனை கெடுக்கிறது. क्योंकि जो परचिंतन करता है, परदर्शन करता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। யாரு பரச்சிந்தன் பண்றாங்க அவங்க பரமாத்மா சிந்தனை எப்படி பண்ணுவாங்க? ஆத்ம சிந்தனை, மனன் சிந்தன், ஞான சிந்தனை எப்படி பண்ணுவாங்க? யாரு பரச்சிந்தனை பண்றாங்களோ அவங்க ஆத்ம சிந்தனை, மனன் சிந்தனை, பரமாத்மா சிந்தனை செய்ய மாட்டாங்க. परचिंतन करने वाला वायुमंडल को खराब कर लेता है। பரச்சிந்தனை செய்யறவங்க வைப்ரேஷனை கெடுத்துடுறாங்க, வாயுமண்டலத்தை நல்லா ஆக்க மாட்டாங்க. परचिंतन करने वाला उसको बाबा भी प्यार नहीं करेगा। अब समझे किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, और बच्चों की बुराई करेंगे, बच्चे ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, बच्चे की बुराई करेंगे। और उसके बाद उसी बाप के सामने बाप की महिमा करेंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। हम कभी कभी न चाहते भी कहते हो फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है, वो ऐसा करता है। हम परचिंतन करते हैं और शाम को बैठ करके क्या करेंगे? योग में बाबा की महिमा करेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की। इसीलिए कई कहते हम योग लगाते हैं, लेकिन बाबा प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने परचिंतन किए हैं। इसीलिए परचिंतन से हमें मुक्त बनने की जरूरत है। பரச்சிந்தனையிலிருந்து விடுபடணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க பரச்சிந்தனை செய்யல, சுய சிந்தனை செய்தால்தான் வைப்ரேஷனை அச்சா ஆக்க முடியும், நல்லா ஆக்க முடியும். ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல முக்கியமா சொல்றாங்க சிவபாபாவுக்கு யார பிடிக்கும்னா சுய சிந்தனை செய்யறவங்கள, ஆத்ம சிந்தனை, மனன் சிந்தனை, ஞான சிந்தனை செய்யறவங்கள தான் ஸ்ரீபாபாவுக்கு, ஸ்ரீபாபாவுடைய அன்பு, ஸ்ரீபாபாவுக்கு பியார், ஸ்ரீபாபாவுடைய அன்பு கிடைக்கும். யார் பரச்சிந்தனை செய்யறாங்களோ ஸ்ரீபாபாவுடைய அன்பு அனுபவம் ஆகாது. பாபா சொல்றாரு, அதாவது பகவான் பாய்ஜி சொல்றாங்க பாருங்க, ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்கள பரச்சிந்தனை, பரதர்ஷன், இன்னொருத்தவங்கள சிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்காங்க, இன்னொரு விஷயத்த சிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பிரதர்ஷன், பிரதர்ஷன் இல்ல, பிரதர்ஷன், பரதர்ஷன், அப்படி பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அப்படி பரச்சிந்தனை, பரதர்ஷன் செய்துட்டு யோகா பண்றாங்க. பாபா அச்சா பாபா, மீட்டா பாபா, மேரா பாபான்னு சொன்னாலும் பாபாவுடைய அன்பு இவங்களுக்கு எப்படி வெளிப்படும்? பாபாட்ட ஆகும். तो इसलिए हमें वर्तमान समय अनुसार अगर कोई हमें निगेटिव बातें सुनाता है, कोई सेंटर की, कोई बहनों की, कोई मधुबन की, उनसे किनारा करने की आवश्यकता है। क्योंकि परचिंतन मतलब केवल संग दोष, जिसको बाबा कहते हैं संग दोष, मतलब कोई बीके नहीं। अगर नॉन बीके भी है या बीके भी है, किसी सेंटर की बहनों की बुराई करता है, वो है संग दोष। इसीलिए संग दोष से बचने की जरूरत है। இப்பொழுது நாம தொடர்புல கூட கவனம் கொடுக்கணும். கனெக்ஷன், யார் தொடர்புல இருக்கிறோம் அது கூட கவனம் கொடுக்கணும். யாரு பரச்சிந்தனை செய்யறாங்க, அதாவது சுய சிந்தனை தவிர எதுவுமே செய்யக்கூடாது. பரச்சிந்தனை செய்யறாங்க, யாரு மதுபன் பற்றி, சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் பற்றி, யாரை பற்றி, பிறரை பற்றி
குறை சொல்றாங்க, பரச்சிந்தன் பரதர்ஷன் பண்றாங்க, அவங்களோட தொடர்புல வர்றது ரைட் கிடையாது, ராங். அப்படி அவங்க அப்படி செய்யறதுனால அவங்களுக்கு அந்த யோகா கூட வராது அப்படின்றதையும் புரிய வைக்கிறாங்க பாய். क्योंकि परिचिंतन करने से सबसे पहले जिसका हम परिचिंतन कर रहे हैं, जिसका दोष देख रहे हैं, उसके प्रति हमारी भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी हमारी मधुबन के प्रति भावना ऊंची है, सेंटर के प्रति भावना ऊंची है, भाई बहनों के प्रति भावना ऊंची है, जितना भावना उतना योग अच्छा। इसीलिए हमारी कोई भावना खराब करता है वो हमारा दुश्मन है। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी के दोष ना देखो। तो ये धारणा हमारी पक्की चाहिए। அடுத்து சொல்றாங்க முக்கியமான பாயிண்ட், பாவனை, நம்முடைய பாவனை நம்முடைய யோகா ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. நம்மளோட பாவனை நம்மளோட யோகா ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. யாரு பாவனையே கெடுக்குறாங்க அவங்களோட கனெக்ஷன்ல வரக்கூடாது. அப்ப நம்மளோட யோகா கூட எப்படி இருக்கும்? அதனால பாவனையை நல்லாக்குறவங்க கூட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும். जैसे कोई किसी के घर में जा कर के कचरा डालता है, गंदगी डालता है किसी के घर में, तो वो जो मालिक बोलेगा हाँ रोज़ आया करो, बड़ा अच्छा लग रहा है, और जहाँ पूजा होते हैं वहाँ डाला करो, ऐसा बोलेगा? उसको तो भगाएगा, कचरा डाल रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ पैदा होगी। इसी तरह कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, ये भी हमारे पास कचरा डालने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको और कहेंगे और क्या हुआ। वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना और बताओ ना क्या हुआ। माना कचरा डालने वालों को हम क्या पिला रहे, चाय पानी पिला रहे। तो एक बार अगर आपके पास डाल के गया, जब कोई इसको सारा दिन में कोई कचरा दिखता है, कोई व्यर्थ बातें दिखती हैं, वो लेगा और आपके पास लाकर डालेगा। अगर हमारे पास कचरा वाले बातें हैं तो हमारे बुद्धि में ज्ञान का चिंतन मंथन नहीं चलेगा। इसीलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, व्यर्थ बातों से, पर चिंतन की बातों से बचने हैं। நாம பரச்சிந்தனை பிற சிந்தனை செய்யக்கூடாது, ஞான சிந்தனை செய்ய வேண்டும். யார் வேஸ்ட் பேசுறாங்களோ அப்படியா இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அப்படியா அப்படியான்னு கேக்குறாங்கன்னா அது கூட என்ன அர்த்தம்னா டீ கொடுத்து வெல்கம் பண்றது அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல பாபா, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அப்படி வீணானதை பேசக்கூடாது, கேட்க கூடாது, பார்க்க கூடாது. ஞான சிந்தனை தான் செய்ய வேண்டும், பரச்சிந்தனை செய்யக்கூடாது. எப்படி பாருங்க, உங்க வீடு இருக்கு, உங்க தெரு இருக்கு, அங்க யாராவது ஏதாவது தேவையில்லாத குப்பையை போடுறாங்க. இப்ப காய்கறி வியாபாரம் பண்றாங்கன்னே வச்சுக்கோங்களேன், எங்கெல்லாம் மீந்து போனது உங்க பக்கம் கொண்டாந்து போடுறாங்கன்னு என்ன சொல்லுவீங்க? அந்த பக்கம் போங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வீணானதை பேசுறவங்க கூட சேரக்கூடாது, பார்க்க கூடாது. அப்பதான் நம்முடைய ஞான சிந்தனை, யோகா, பாவனை நல்லா இருக்கும். और जो ये परचिंतन करता है उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जैसे फैक्ट्री से कोई धुआं निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, उसको ताला लगा देगी, क्योंकि धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन हो जाएगा, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, पशु पक्षी के ऊपर उसका असर हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह हमारा भी 63 जन्मों से हम मंदिर में जाते थे, भक्ति करते थे, किसी लिए, हे भगवान मेरे बुद्धि का ताला खोलो, हे भगवान मेरे ताला। तो बाबा ने ताला तो खोल दिया, तीसरा नेत्र को खोल दिया, लेकिन अगर हम ज्ञान में चलने के बाद फिर परचिंतन करेंगे, किसी का दोष देखेंगे, फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा ऊपर से देखेगा ये तमिलनाडु या कौन से विदेश के कौन से कंट्री से धुआं निकल रहे हैं, जो ऐसा परचिंतन का धुआं निकालेगा, वायुमंडल खराब करेगा, उसके बुद्धि का ताला दोबारा बंद हो जाएगा। और एक बार बुद्धि का ताला बंद हो गया, ना परम धाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है, मन बुद्धि भटकती है, फिर कहती योग लगता ही नहीं। इसीलिए हमें पर चिंतन की, दोष देखने की भावना को खत्म करना है। அடுத்து சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க நமக்கு பரச்சிந்தனை செய்யக்கூடாது, வீணானதுல இருந்து விடுபடணும். அடுத்து நமக்கு புரிய வச்சாங்க, ஸ்ரீ பாபாவுடைய அன்பு கிடைக்கணும் அப்படின்னாலும் சுய சிந்தனை, ஒன்லி சுய சிந்தனை தான் இருக்கணும், பரச்சிந்தனை இருக்கக்கூடாது. அடுத்து நமக்கு புரிய வச்சாங்க, நம்மளோட கனெக்ஷன் கூட சுய சிந்தனை செய்பவரோடு இருக்கணும், ஞான சிந்தனை செய்பவரோடு இருக்கணும், பாவனை நல்லா இருக்கணும், அப்பதான் நம்முடைய யோகா நல்லா இருக்கும். அடுத்தும் புரிய வைக்கிறாங்க, புத்தி தாலா கோலோ, பாபா என்னோட புத்தின்னு போட்ட திறந்துருங்க, பாபா எனக்கு புத்தி கொடுங்க. கன்ஃபார்ம் இதுதான் பக்தியிலையும்
கேட்டோம். 63 ஜென்மமா பக்தி செய்து இறைவா எனக்கு நல்ல புத்தி கொடு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்போ பாபா புத்தியின் கூட திறந்துட்டாங்க, 3வது கண் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ சுய சிந்தனை தான் செய்யணும், பர சிந்தனை செய்யக்கூடாது. பர சிந்தனை பண்றாங்கன்னா பரமாத்மாவையோ பரந்தாமத்தையோ அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட புத்தியின் போட்டு பூட்டப்பட்டுருது. அதுக்கு உதாரணம் சொல்றாங்க, ஃபேக்டரி நடக்குது, அதுல இருந்து ஸ்மெல் வருது. அதோட அந்த ஏர் ஆனது காற்றை மாசுபடுத்துதுன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அத லாக் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எந்த ஊர்ல, தமிழ்நாடா, பாரதமா, நார்த்தா, எங்க யாரு வேஸ்ட் பேசுறாங்க, புத்தி சரியில்லை, பாபா புத்தியின் பூட்டை திறப்பாரா பூட்டுவாரா? அப்புறம் அவங்க எப்படி பரந்தாமத்தை பரமாத்மாவை பார்க்க முடியும்? அதனால சுய சிந்தனை தான் செய்யணும், ஞான சிந்தனை தான் செய்ய வேண்டும். इसलिए ये परचिंतन, जो परचिंतन करता है उसका मनन चिंतन नहीं करता चलता। ज्ञान का जो मुरली 4 पेज की सुनती हैं, शाम तक पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, हाँ बहुत अच्छी थी, क्या थी, बहुत अच्छा थी, वरदान क्या था, वो भी बड़ा अच्छा था, स्लोगन क्या था, वो मीठे बच्चे में क्या, एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। क्यों? परचिंतन करने से ज्ञान दिमाग में नहीं बैठता। அதே போல அடுத்த பாயிண்ட்லயும் சொல்றாங்க, பாபாவை பார்க்கணும், பரந்தாமத்தை பார்க்கணும்னா சுய சிந்தனை, ஞான சிந்தனை. அதே போல ஞான சிந்தனை இருந்தால்தான் வரதானம் கேட்கிறோம், ஸ்லோகன் கேட்கிறோம், வரம் நினைவிருக்கும், வரதானம் நினைவிருக்கும். இல்ல வரதான நினைவில்ல, ஆனா வாணி கேட்டாச்சு, அப்பா பாபா அப்படி சொன்னாரு, இன்னைக்கு பாபா அப்படி சொன்னாரு, அதோட சரி, ஆனா என்ன பாயிண்ட் அது சொல்ல வரல அப்படின்னா புத்தி நிலை எப்படி இருக்கு? जैसे कल के बाबा ने कहा, मतलब हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसके लिए पुराने संस्कारों से मुक्त बनना, देह भान से मुक्त बनना, तो सबसे परचिंतन करना ये भी हमारे एक पुराने संस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, इसे भी मुक्त बनना। अगर जब तक इसे मुक्त बनेंगे नहीं, कर्मातीत नहीं बनेंगे। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हम थोड़ा सा योग ज्ञान करते हैं और सारा दिन परचिंतन करेंगे तो जो किया वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इससे मुक्त बनना। சுய சிந்தனை தான் செய்யணும், பர சிந்தனை பண்றாங்கன்னா பழைய சம்ஸ்கார், தேக உணர்வு, பழைய சம்ஸ்காரத்திலிருந்து முக்தி அடையணும். தேக உணர்வு, தேகபான்ல இருந்து முக்தி அடையணும். சுய சிந்தனை தான் செய்யணும். பாருங்க, வாணியோட பாயிண்ட் கேட்டா டக்குன்னு சொல்லணும், மற்றபடி பர சிந்தனை பரதர்சன் அது இருக்கக்கூடாது. ஒருவேளை கொஞ்சம் ஞான சிந்தனை செய்துட்டு ஃபுல்லா பரச்சிந்தனை பரதர்சன் பண்றாங்கன்னா அது கூட லாபம் இருக்குமா, நஷ்டம் இருக்குமா? கண்டிப்பா அது மறந்து போய் கெட்டது தானே நினைவு இருக்கு. அதனால சுய சிந்தனை, ஞான சிந்தனை தான் செய்ய வேண்டும். जैसे सरस्वती माँ कहाँ बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है, बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। हाँ, कौवे के ऊपर तो नहीं बैठा ना, कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। परचिंतन करने वाला अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ। अब जिसका परचिंतन कर रहे हैं, समझो कोई सामने नहीं है, 2-4 इधर उधर देखेंगे, कोई सुन ही नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे 2 मिल करके परचिंतन करेंगे। फिर जिसका परचिंतन करता है वो अचानक आया तो उसको क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। उसके दिमाग में फिर ज्ञान नहीं बैठता, बुद्धि में वरदान स्लोगन सारा उड़ जाता है। और जिसका ज्ञान का मनन चिंतन नहीं रहता उसको खुशी नहीं होती, खुशी गायब हो जाती, चेहरा और चलन में खुशी नहीं होगी। யாரு சுய சிந்தனை பண்றாங்க, ஞான சிந்தனை பண்றாங்க, அவங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய முகம் நடத்தையில் அவங்களுடைய ஞான சிந்தனை தெரிந்துவிடும். சரஸ்வதி தேவி, சரஸ்வதி மா அன்ன பறவையில இருக்காங்க. அப்போ பாருங்க, நம்மளோட உள்ளும் புறமும் கூட எவ்வளவு சுய சிந்தனை, ஞான சிந்தனையில நம்மளோட நடத்தையில எப்படி நாம ஞானத்தை வெளிப்படுத்துறோம். सरस्वती माँ हंस के ऊपर बैठी। हंस मतलब नीर अलग खीर अलग, दूध अलग करता, दूध पानी मिला कर दो तो दूध को क्या करता है, पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। और हंस को कंकड़ मोती मिला कर दो, कंकड़ को छोड़ेगा, मोती चुगेगा। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरे की अच्छाई देखता है वो है हंस, जो बुराई देखता है वो है कौवा। इसीलिए बाबा कहते हैं हंस बनो। इसीलिए बाबा ने हम सभी का ड्रेस भी हंस की तरह दे रहा। हंस मतलब केवल
ड्रेस पहनने से नहीं, लेकिन हमें किसी की भी दोष देखने नहीं। क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक को अपना अपना स्क्रिप्ट मिला है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, पड़ोसनी की स्क्रिप्ट अलग है। जैसा जिनको स्क्रिप्ट नहीं मिला ऐसा पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, किसी ने गाली भी दी तो क्या कहो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। हाँ, इनके मेरा हिसाब। तो इसीलिए इस ड्रामा को पक्का करेंगे तो कभी भी हमें परिचिंतन करने की आदत नहीं लगेगी। நாம டிராமால பக்காவா இருக்கணும். பரச்சிந்தனை செய்யக்கூடாது. சுய சிந்தனை, ஞான சிந்தனை பண்ணணும். டிராமால பக்காவா இருக்கணும். அன்னப்பறவையில சரஸ்வதிமா இருக்காங்க. அன்னப்பறவைய சரஸ்வதிமாக்கு வாகனமா காட்டியிருக்காங்க. அப்ப அந்த அன்னப்பறவை பாருங்க, நீங்க பால் வைக்கிறீங்க சாப்பிடுறதுக்கு, பாலை குடிச்சிட்டு அதுல இருக்கிற தண்ணியை விட்டுடுது. முத்துக்கள் கற்கள் சேர்த்து வைக்கிறோம், முத்துக்களை மட்டும் எடுத்துக்குது. அப்படி நாம அன்னமாக இருக்க வேண்டும், நல்லதை பார்க்க வேண்டும். அன்னப்பறவையாக இருக்க வேண்டும், நல்லதை பார்க்க வேண்டும். கெட்டதை பார்க்கறவங்க காக்கா, கொக்கு அப்படி சொல்லப்படுது. அன்னப்பறவைய நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்க கூடியதுன்னு சொல்லப்படுது. நாம அன்னமாக இருக்க வேண்டும். इसलिए बाबा कहते बच्चे इससे बच करके रहना। जैसे एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसी तरह परिचिंतन करने वाला क्या करता है, वो खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। हाँ, खुद तो ये इसीलिए। और कोयले, एक होता है हीरे के व्यापारी, हीरे के व्यापारी रहता है महलों में। इसी तरह जिस व्यक्ति के हम कोयले खरीद कर रहे, बुराई देख रहे, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो है ना, उसके अंदर गुण भी है ना। इसलिए हमें गुणों को देखना, अच्छाई को देखना, और तब जाकर के हम पर चिंतन से बचे रहेंगे। நாம பரச்சிந்தனை செய்யக்கூடாது. அன்னப்பறவை போல நல்லதை மட்டும் பார்க்க வேண்டும். எப்படி பாருங்க, மாளிகையில இருக்கிறாங்க. அப்போ நாம பிறரை பார்க்கிறது கூட நல்லது பார்க்கலாம். எல்லார்கிட்டையும் ஏதாவது நல்லது கெட்டது அப்படி இருக்கும் இல்லையா? நாம நல்ல விஷயங்களை மட்டும் பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கணும். பரச்சிந்தனை செய்வதிலிருந்து விடுபட வேண்டும். जिस व्यक्ति के अंदर हम दुर्गुण देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, उसके अंदर अच्छाई छिपी है। क्योंकि हर बाबा कहता है किसी के अंदर 99 भी दुर्गुण है, लेकिन एक तो अच्छाई है। इंसान होने के नाते हर एक में अच्छाई छिपी रहती है। हम उस अच्छाई को देखना, और अच्छाई को देखेंगे तब जा कर के उसको उमंग, उत्साह, या हमारा पॉजिटिव वेरा सोचना भी हमारा चिंतन निगेटिव है, और निगेटिव वालों को खुशी नहीं होती। யாரு பாசிட்டிவா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஹாப்பி இருக்கும். யாரு பாசிட்டிவா அன்னப்பறவை போல நல்லதை மட்டும் பார்க்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஹாப்பி, மகிழ்ச்சி இருக்கும். குணத்தை மட்டும் பார்க்க வேண்டும். ஒருத்தட்ட குணமே இல்லை, ஆனாலும் ஒரு குணமாவது இருக்கும். 99 குணம் இல்லைனாலும் ஒரு குணமாவது இருக்கும். அந்த குணத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடியவங்களா, ஊக்க உற்சாகம் இருக்கக்கூடியவங்களா இருந்தா அப்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க. परिचिंतन करना अर्थात जब परिचिंतन करेंगे तो अपने, जैसे बाबा का तो कहते हैं भाई सुदर्शन चक्र घुमाओ और माया का गला काटो। लेकिन आप प्रदर्शन घुमाएंगे तो खुद का ही गला काट जाएगा। खुद का गला मतलब खुद का समय चला गया, श्वास चला गया, शक्तियाँ चली गई, अपना खुद का घाटा है। इसीलिए हमें कोशिश करके हमें क्या करना है, इससे बचना है। बाबा तो कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वही नहीं, चले गए। क्यों गए? वहाँ यहाँ आकर के उन्होंने कोई बहनों की, कोई सेंटर की, मधुवन की कोई ना कोई दोस्त देखे और वो चले गए। अब जा करके बैठे भी नहीं, वहाँ भी डी सर्विस कर रहे, कहीं देख रहे हैं आजकल। इसलिए आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपस। भाई आए किसी लिए, अपने को बदलने के लिए आए, और दूसरों को देखेंगे तो पढ़ाने वालों को भी दोष दिखाई पड़ेगा, बाबा के भी दोष दिखाई पड़ेंगे, भगवान ही ऐसा है, वो भी ऐसा ही करेंगे। फिर பாருங்க, 99 குணம் இல்லைனாலும் ஒரு குணமாவது இருக்கும். அந்த ஒரு குணத்தை பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கணும். அன்னப்பறவையா இருக்கணும். பாசிட்டிவா இருந்தாதான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும். ஊக்க உற்சாகம் இருக்கணும். பரதர்சன், பரச்சிந்தனை யார் பண்றாங்க அவங்களுக்கு பவர், சக்தி இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுடைய சக்கரம் கரெக்டா சுத்தல இல்லையா, கையில உள்ள சக்கரம் கரெக்டா சுத்தல இல்லையா, அப்ப அவங்களுக்கு சக்தி இருக்காது. அதே சுயதர்ஷன் பண்றாங்கன்னா அவங்க சக்கரம் கரெக்டா சுத்துது இல்லையா,
இல்லையா, சுய தர்சன சக்கரம் கரெக்டா சுத்துது இல்லையா, அப்ப சக்தியா இருக்கும். ஆனா பரதர்ஷன் பண்றவங்க அவங்களோட தலையவே கட் பண்ணிக்கிறாங்க, சுதர்சனம் பண்றவங்க மாயாவுடைய தலையை கட் பண்ணுவாங்க. நாம சுதர்சன சக்கரதாரி சுய தர்சன் சுய சிந்தன் பண்றோம்னா, ஞான சிந்தன் பண்றோம்னா பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். பிறருடைய குறை பார்க்க கூடாது, தன்னோட பரிவர்த்தனை செய்யணும், சுய பரிவர்த்தனை செய்யணும், பிறருடைய குறை பார்க்க கூடாது. ஒருவேளை குறை பார்க்கறாங்க, மதுவனை ஏதாவது சொல்றாங்க, சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னா, நாளைக்கு பாபாவையும் தான் சொல்லுவாங்க. குறை பார்க்கிறவங்க, குறை பேசுறவங்க எல்லாரையுமே சொல்லுவாங்க, பாபாவையே அடுத்து சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த குறை பார்க்கிற பழக்கம், பேசுற பழக்கம் இருக்கக்கூடாது. बाबा ने तो एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी। जब बच्चे पर चिंतन करते हैं उसका वाइब्रेशन ऊपर आता है। बच्चे जब सोच चिंतन करते हैं उसका भी वाइब्रेशन आता है ऊपर। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं जब तपस्या में बैठता हूँ, कोई नीचे से पर चिंतन करता है, वो नीचे से जैसे बदबू आती है, तो मैं कहता तो कौन सा बच्चा नीचे बदबू फैला रहे। बाबा कहता है मुझे अगर परमिशन होती थी जाकर के उस बच्चे का मुंह ही बंद करता, तुम ये क्या वायुमंडल खराब कर रहे हो। और जब बच्चे सोचिंतन करते हैं, योग लगाते, तपस्या करते, नीचे से खुशबू आती है, बाबा कहते हैं मैं ऊपर परम अव्यक्त वतन में डांस करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं तो बाबा को डांस कराना है, बाबा को ये करना है, न कि बाबा कहते हैं परचिंतन करने से काला धुआं वो मेरे भी आंखों में ये आता है, मैं देखता हूँ बच्चे का मुंह बंद करो, कितना अच्छा समय चल रहा है, तुम ये क्या वही मंडल फैला रहे। इसलिए हमें इससे बचना है। அடுத்து சொல்றாங்க, எப்படி ஒரு ஃபேக்டரியில சுமல் வருது, அது காற்ற மாசுபடுத்துதுன்னா உடனே கவர்மெண்ட்ல இருந்து அந்த ஃபேக்டரி இனிமே வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாங்க. அதை போல மேல சிவபாபா மூலவதனத்துல இருக்காங்க, சிவபாபா பரந்தாமத்துல இருக்காங்க, பிரம்ம பாபா வதனத்துல இருக்காங்க. பாபா யோகா பண்றாங்க, பிரம்ம பாபா பவர்ஃபுல்லா தபஸ் பண்றாங்க. அந்த நேரம் நல்ல ஒரு குஸ்பு ஸ்மெல் வருது, நறுமணம் வருது. என்னன்னா பிள்ளைங்க சுய சிந்தனை ஞான சிந்தனை செய்து நல்ல நறுமணம் வருதுன்னா ஹாப்பி ஃபீலிங்கா இருக்கும். பாபாவுக்கு டான்ஸ் பண்ணுவாங்களாம். யாரு சுய சிந்தனை பண்ணல, பர சிந்தனை பரதர்ஷன் பண்றாங்க, அந்த ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா பாபாவுக்கு எப்படி ஹாப்பி ஃபீலிங் வந்து டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. பாபா என்ன சொல்லிடுவாங்க, ஏன் இப்படி வாயுமண்டலத்தை கெடுக்குறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நாம நல்ல வாயுமண்டலத்தை உருவாக்கக்கூடியவராக, சுய சிந்தனை ஞான சிந்தனை செய்பவராக இருக்க வேண்டும். पर चिंतन करना अर्थात ओमिटिंग करना, उल्टी करना। जैसे कोई लौकिक में कोई ओमिटिंग करता है, उल्टी करता है, क्यों करता है? क्योंकि चटपटी चीज़ें देखता है, चटपटी चीज़ें खाता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होती तो क्या करता है, उल्टी करता है। और उल्टी कहाँ की जाती है? वॉश बेसिन में। हाँ, तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी समाचार सुनता है, इधर उधर की चटपटी बातें सुनता है, उसके बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो उल्टी करता है, माना दूसरों को सुनाता है। कहाँ सुनाता है? किसी के कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। जैसे उस वॉश बेसिन में कोई उल्टी करता है, वो कोई लौकिक में, तो हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं। लेकिन यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो हम और ही कान का आगे करते हैं, और क्या हुआ, और क्या हुआ करके और नज़दीक जाते हैं। अब जिस कान की उल्टी, एक नली भी है कान के अंदर, वो नली की बातें, कान की बातें कहाँ जाती है? दिल में। और दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। अगर कान में ऐसी, जिस कान में अमृत डाला उसमें ऐसी बातें डालेंगे तो ऐसे दिल में बाबा कैसा बैठेगा? इसलिए अब हम मुझे अपने दिल को स्वच्छ करना है, निगेटिव बातें, व्यर्थ परचिंतन की बातें सुन करके दिल को खराब नहीं करना। इसीलिए हमें संगम युग में अब लास्ट का समय चल रहा है, ये परचिंतन परदर्शन की बातों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है, और तब हम संपन्न बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, बाबा प्यार करेगा। யாரு அசரீரி ஆகுறோம், யாரு சம்பன்னம் ஆகுறோம், யாரு அசரீரி ஆகுறோம், சம்பன்னம் ஆகுறோம், பாபாவோட பியார், பாபாவுடைய அன்பு கிடைக்கும். இப்போ சங்கம யுகம், கடைசி நேரம், லாஸ்ட் சமயம், கடைசி நேரம் சங்கம யுகம். சம்பன்னமாக வேண்டும், அசரீரியாக வேண்டும், ஞான சிந்தனை செய்ய வேண்டும், சுய சிந்தனை செய்ய வேண்டும். யாரு பர சிந்தனை பண்றாங்க, பாபா தில்மை, எப்படி பாபா உள்ளத்துல இருக்க முடியும்? யாரு கரெக்டா இருக்கிறோம் அவங்க தான் தில் தக் நசின், பாபாவோட உள்ளத்துல இருக்க முடியும். அடுத்து சொல்றாங்க ஒரு பாயிண்ட்ல பாருங்க, வாமிட் பண்றாங்கன்னா ஆஸ்பேஷன்ல பண்ணுவாங்க. யாருக்கு வாமிட் ஆகும்? வயிறு
இருந்துச்சு, வயிறு எப்படி இருந்துச்சு, வாமிட் பண்றாங்க. அதே போல யாரு வேஸ்ட் பேசுறாங்க, அப்ப யாரோட காதுல பேசுறாங்க, என்ன பேசுறாங்க, இது எல்லாமே ராங் ராங் உல்டா ரைட்டு கிடையாது. அந்த மாதிரி காரியம் செய்யக்கூடாது. சுய சிந்தனை தான் செய்யணும், ஞான சிந்தனை தான் செய்யணும், சுய தர்சன் தான் பண்ண வேண்டும், சம்பன்னமாக வேண்டும், அசரீரி ஆக வேண்டும். பாபா உள்ளத்துல தில் தக்த் நஸ்கின் சொல்லுவார் இல்லையா, பாக்கி தில் தக்த் நஸ்கின், பாபாவோட உள்ள சிம்மாசனதாரி ஆக வேண்டும். ना किसी के कान में उल्टी करना है, ना किसी की उल्टी को अपने कान में लेना है। हाँ, पहले तो पहले तो कहते थे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन अब बाबा कहते हैं नहीं, ना किसी कोई कान से सुनो, जिस कान से सुनना ही नहीं वहाँ उधर से निकाल दो, क्योंकि अब समय सुनने का नहीं है, व्यर्थ देखने का नहीं है। இப்பொழுது நேரம் வீணானதை பார்க்கறதுக்காக கிடையாது. பிறரை பார்க்கறாங்க, பிறரை பேசுறாங்கனாலே வாமிட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா. அப்ப யாரு சுய சிந்தனை பண்றாங்க, யாருக்கு சுய தர்சன் பண்றாங்க, யாரு தன்னோட பரிவர்த்தனை பண்றாங்க, அவங்கதான் பாபா உள்ளத்துல இடம் பிடிக்க முடியும். அவங்கள பார்த்துதான் பாபா கூட மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு. இல்லைன்னா பாபாவுக்கு எப்படி சொன்னாங்கல்ல, அந்த ஃபேக்டரியில இருந்து ஸ்மெல் வருது, அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பாபாவுக்கே நெகட்டிவ் ஸ்மெல் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாபாவுடைய அன்பு அனுபவம் ஆகாது, அவங்களுக்கு யோகா வராது. पर चिंतन करने वाला सो चिंतन, सो उन्नति, शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव, आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं कर सकता। யாரு சுய சிந்தனை பண்றாங்க, யாரு சுய தர்ஷன், சுய சிந்தனைனா ஒன்லி தன்னை பற்றி மட்டும் சுய சிந்தனை, சுய தர்சன், சுய பரிவர்த்தன், இப்படி பண்றவங்க மட்டும்தான் பாபாவோட அன்பு, சாந்தி, சக்தி, யோகா, பாபா பரந்தாமத்துல பார்க்கலாம் அப்படிலாம் சொன்னார் இல்லையா, இதெல்லாம் செய்ய முடியும். இல்லைன்னா அவங்களோட புத்தியும் பூட்டப்பட்டுருது, அவங்களால பாபாவையும் பார்க்க முடியாது, பாபாவோட அன்பையும் அனுபவம் செய்ய முடியாது. एक व्यक्ति था, एक भगत था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहता हूँ, प्रगति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी, उन सभी के अंदर जो जो बुराई है उसकी चिटकी बना करके मैंने पीछे वाले थैले में डाला है। और कहा कि आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, सारे दोष की बातें तुम्हारे खुद के आगे वाले थैले में रखा है। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है, दूसरे की दोष का बुराई का थैला है, उसको पीछे रखना, उसके बारे में सोचना नहीं, उसको देखना नहीं, तो बस इतना करो। और तुम्हारा जो बुराई है, तुम्हारा बुराई का थैला है, वो बीच में जब भी तुमको समय मिलता है थैले के अंदर हाथ डालो, निकालो कि और मेरे अंदर क्या क्या बुरा है वो परिवर्तन करो, बस इतना करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जाओ, मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। लेकिन भगवान ने लास्ट में इशारा दिया, थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई का, कहता है भगवान मैं ऐसा ही करूँगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला जाता। ஒரு வியக்தி இருந்தாரா, ஒரு மனிதர் இருந்தாரா, ஒரு பக்தர் இருக்காரு, ஒரு பகவான்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, இறைவா எனக்கு சுகம் சாந்தி கொடுங்க, இறைவா எனக்கு துக்கத்தை நீக்கி சுகம் கொடுங்க, அசாந்தியை நீக்கி சாந்தி கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு பக்தன் பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. உடனே பகவான் வரம் கொடுக்கிறாரு, பாரு நீ உன்னுடைய குறைகளை மாற்றிக்கொள்வதற்காக சிந்தனை பண்ணு, எழுது, இறைவன் முன்னாடி வச்சுட்டு அதை மாற்றிக்கொள். அதை உன்னை சுற்றி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, உன்னை சுற்றி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, நீ யாரோட குறை பார்க்கிற, அதெல்லாம் எழுதி பின்னாடி வச்சிரு, கடவுளுக்கு பின்னாடி வச்சிரு. உன்னுடைய குறையை எழுது, அதை பரிவர்த்தனை பண்ணு, அதை மட்டும் கடவுள்கிட்ட சொல்லு, அப்போ நீ சுகம் சாந்தியா இருப்ப அப்படின்னு திருப்பி சொன்னாராம் பகவான். वो थैले लेके चला जाता है। कुछ समय के बाद क्या करता है वो भगत, दूसरे की बुराई का थैले को आगे लेता है और उसको खोल देता है और उसके अंदर हाथ डाल करके देखता, अच्छा फलाना ऐसा है,
वो ऐसा ही औरों को बुला बुला करके उसको सुनाता है। सावधान रहना उसे, उसके अंदर ऐसा ऐसा संस्कार है, मैंने देख लिया है, मैं जानता हूँ, सावधान रहना। और अपनी बुराई को क्या किया, बांध करके पीछे रखा। कोई बोलते भी भाई तुम ये आजकल ऐसे करने नहीं, मैं ठीक हूँ, उसके करना ऐसा होता है। जैसे उसने थैले उल्टे के, उसके वरदान भी उल्टे हो गए। பகவான் என்ன சொன்னாரு, உன்னோட குறைகளை எழுது, பரிவர்த்தனை பண்ணு, நான் வரதானம் கொடுக்குறேன், சுகம் சாந்தியா இரு. பிறரோட குறைகளை எழுதி பின்னாடி வச்சிரு, அதை நீ எழுத வேண்டாம், நினைக்க வேண்டாம் அப்படி சொன்னாரு. ஆனா இவர் என்ன பண்ணாராம், யார் யார் என்னென்ன பண்றாங்க, யார் யார் என்னென்ன பண்றாங்க, என்ன செய்யறாங்க, இதை பார்க்கறது, இதை எழுதுறது, இந்த விஷயத்திலேயே போயிட்டாராம். அப்போ அவருக்கு வரதானம் உள்டாவா வேலை பார்க்குது. அப்போ நமக்கு கூட இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னாங்க, அவங்களோட புத்தியின் பூட்டு பூட்டப்பட்டுரும். அப்புறம் புத்தியின் பூட்டு பூட்டிருச்சுன்னா அவங்க பாபாவுடைய அன்பை கண்டிப்பா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அனுபவம் பண்ண மாட்டாங்க. பாபாவோட குழந்தையவே பாபாட்ட குறை சொல்றாங்க, எழுதுறாங்க, நிந்தனை பண்றாங்கன்னா, என் குழந்தைய நீ ஏன் இப்படி பேசுற அப்படின்னு பாபா கேட்பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி அவர் பிறரோட குறைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. வரதானா அவருக்கு உள்டாவா வேலை பார்க்குது, அவரோட புத்தியின் பூட்டு பூட்டிடுது. तो कुछ समय के बाद फिर भगवान के पास आता है, कहते हैं भगवान आपने तो वरदान भी दिया था मुझे, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आपकी प्रगति होगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया। भगवान को सुनाता है। भगवान ने कहा अच्छा, कुछ समय पहले तुम आया था, तुमको एक वरदान दिया था और साथ में कुछ थैले दिया था, उस थैले को तुमने कहाँ रखा। कहता हाँ भगवान मेरे से ये तो भूल हो गई, मैंने कई बार दूसरे की बुराई को मैंने क्या किया था, आगे लिया था और उसको खोल करके औरों को भी सुनाया था, ये मेरे से भूल हो गई, और अपनी बुराई को मैंने पीछे रखा था, ये मेरे से। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुम्हारी समस्या का कारण है, तो आज से फिर से तुम क्या करो, तो ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम यहाँ क्यों आते हैं, बाबा के पास थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में क्या करता है, 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को तुम पीछे रखो और अपनी बुराई को आगे रखो। पीछे रखना मतलब किसी को भी देखते हुए भी न देखना, लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, अपनी बुराई को पीछे रखते हैं और दूसरे की बुराई को लेकर के फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा करता है, मुझे कब तक सहन करना है, दूसरों को जाकर सुनाते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। तो जबकि हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा का अपना अपना कर्म है, लेकिन फिर भी हम सारा दिन कहते हैं ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, और ये परचिंतन हमारी उन्नति न होने का, हमारे दुखों का कारण, हमारा टाइम वेस्ट होने का कारण है। इसीलिए अगर अब कम समय में संपन्न बनना चाहते हो तो ये परचिंतन से मुक्त बनने की आज से हमें पक्की धारणा करनी है। अभी नया साल चालू होने वाला है, 1 महीना बाकी है, तो इस 1 महीने में हम दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि ये परचिंतन स्थिति को हमारी बिगाड़ता है, स्थिति खराब करता है। இன்னைக்கு டிசம்பர் 1 இல்லையா, இந்த 1 மந்த் நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, சுய சிந்தனை பண்ணுங்க, சுய தர்சன் பண்ணுங்க, சுய பரிவர்த்தன் பண்ணுங்க. அப்படி நீங்க பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா பாருங்க உங்களுக்கு புத்தியின் பூட்டு போட்டப்படும். பகவான் கிட்ட நீங்க வந்தது சுகம் சாந்தி வாங்க, வரம் வாங்குறதுக்கு, சமாதானத்துக்கு, சமஸ்யா பிரச்சனைக்காக அல்ல. பிறருடைய பார்ட்ஸ் தனிப்பட்டது, பிறருடைய கர்மா தனிப்பட்டது, பிறருடைய பார்ட்டை பார்க்கறது, பிறருடைய கர்மாவை பார்க்கறது, அவங்க அப்படி செய்யறாங்க இவங்க இப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்றது, இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஒரு பக்தன் இருந்தாங்க, பகவான் கிட்ட வரம் கேட்டாங்க, எனக்கு சுகம் சாந்தி வரம் கொடுன்னு கேட்டாங்க. அவர் சொன்னாரு சுய சிந்தனை பண்ணு, உன்னோட குறைய பார்த்து பரிவர்த்தன் பண்ணு, சுகம் சாந்தியா இருப்ப. பிறரோடத எழுதுனேன்னா அதை கடவுள் பின்னாடி வச்சிரு, அந்த விஷயத்தை விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா. ஆனா இவரு பிறரோடத பார்த்து ஆரம்பிச்சுட்டாரு, அதனால வரதானம் உள்டாவா வேலை பார்த்து மறுபடியும் வந்து சொன்னார் கடவுள் கிட்ட, சுகம் சாந்தி கொடு அப்படின்னு. நீ என்ன காரியம் பண்ண, உனக்கு ஏன் வரதானம் உள்டா வேலை பார்த்துன்னு கடவுள் புரிய வைக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நாம சுய சிந்தனை செய்ய வேண்டும். சுகம் சாந்தி, பாபாவுடைய வரம் பிரச்சனை இல்லை, சமாதானம், இதெல்லாம் அனுபவம் பண்ணணும் அப்படின்னா சுய சிந்தனை, ஞான சிந்தனை செய்பவரா இருக்கணும். பிறரோட பார்ட்ஸ் தனிப்பட்டது, பிறரோட கர்மா தனிப்பட்டது, அதை பார்க்கணும், சொல்லணும், நினைக்கணும் அப்படி அவசியம் கிடையாது. समझो अच्छे कपड़े पहन करके ऑफिस में जा रहे थे, तो चलते चलते कोई एक व्यक्ति मिला,
और उस व्यक्ति ने अचानक आपके कपड़े के ऊपर कीचड़ लेकर के डाल दिया, अचानक डाल दिया। अब कीचड़ लगे हुए कपड़े पहन करके आप इसमें कैसे जाएंगे? लोग कहेंगे अरे तुम क्या गिर गए थे कि ये क्या हुआ, तो वापिस आएंगे। अब उसके लिए टाइम वेस्ट हो गया, वापिस आएंगे, कपड़े बदल के जाएंगे, तब तो टाइम काफ़ी हो गया, लेट हो गए। अब दूसरे दिन फिर वहीं से जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा था जिसने कल कीचड़ा डाला था, और कई बार, कल ही नहीं कई बार डाला है। तो ऐसा क्या करना चाहिए? हाँ, उस व्यक्ति से दूर रहना है ना। हाँ, या कहेंगे हाँ कल जो खिचड़ा डाला ना बड़ा मजा आ गया, आज भी हम कपड़े पहन के आए, डालो, ऐसे कहेंगे? जो खिचड़ा डाला उसको तो भगाएंगे, हाँ कहीं भी किनारा करेंगे। इसीलिए हम अमृत वाला अच्छा किया था, मुरली आज बड़ी धारणा वाली सुनी थी, और चलते चलते कोई एक व्यक्ति XYZ मिल गया, मिल करके पहले तो शुरू करता है ज्ञान से, आज बाबा की क्या मुरली थी, बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर चलते चलते क्या बोलता है, आजकल हमारे सेंटर की बहनें ना बड़ी आलसी बन गई, देखो दूसरे सेंटर पर कितनी अच्छी उन्नति हो रही है, वो कितनी अच्छी प्रगति कर रहे, क्या क्या कर रहे, बटिया कराते हैं, अपनी बहनी खाती पीती सोती, फिर वो अपनी बहनों को सुना रहे, अपनी बहनों को सुना रहे, फिर ठीक है ड्रामा, कोई बात नहीं करके बस वो बातें सुन के चल पड़ेंगे। अब अवस्था अच्छी थी तो ये परिचिंतन करने से बिगड़ गई। फिर वही व्यक्ति कल फिर सामने खड़ा है जिसने कल परिचिंतन की बातें सुनाई थी, स्थिति बिगाड़ दी थी, तो क्या उसके बाद जाएंगे? फिर वो हमेशा किचड़ा ही डालता है। इसीलिए ऐसे किचड़ा डालने वाले किसी, भले वो महारथी भी हो, बड़ा व्यक्ति भी हो, पुराना भी हो, लेकिन किसी की निगेटिव बातें सुनाता है, वो मेरा दुश्मन है। इसीलिए इस 2025 में, नए साल में, एक धारणा पक्की करो कि मुझे किसी के दोष सुनने नहीं, मुझे किसी की बुराई सुननी नहीं, न्यारे प्यारे रहूं इन बातों से, तब अशरीरी बनेंगे, तब शरीर से भी न्यारे बन जाएंगे। अगर इन बातों में प्यारे हैं तो अशरीरी कैसे बन सकेंगे? इसीलिए इन बातों से हमें परचिंतन से बचना। இப்போ நாம சுய சிந்தனை, சுய தர்ஷன் அப்படி செய்பவராக, ஞான சிந்தனை செய்பவராக இருக்கணும். அப்பதான் நாம பாபாவை, பரமாத்மாவை, பரந்தாமத்தை பார்க்க முடியும், அனுபவம் பண்ண முடியும். அசரீரி நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அசரீரி ஆகணும். கொஞ்சம் சமயம்தான் இருக்கு. எந்த விஷயம் பார்க்குறோம், ஆனால் நமக்கு அப்படி இருக்கணுமா, அவங்களோட பாட்டு டிராமா அப்படி நினைச்சிடணும். இந்த 2024 1 மந்த்ல முடிஞ்சிடும், 2024 ஒரு மாதத்துல முடிஞ்சிடும், 2025 வரப்போது. நம்மளோட ஸ்திதி எப்படி இருக்க வேண்டும்? நாம பாசிட்டிவா இருக்கணும், நெகட்டிவ்ல இருந்து தூரம் இருக்கணும். அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்படி பாருங்க, நெகட்டிவ் இருக்கு, அந்த வைப்ரேஷனை உங்க மேல அவங்க பண்றாங்கன்னா நீங்க பாசிட்டிவா இருக்க பாருங்க, நெகட்டிவ்ல இருந்து தூரம் இருக்க பாருங்க. இதுதான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எப்படி பாருங்க உங்க மேல, நான் அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த கதைகள் நமக்கு முன்னாடியே சொல்லுவாங்க. இப்ப பாய்க்கியும் சொல்றாரு, யாராவது குப்பையை போடுறாங்க, நெகட்டிவ் பண்றாங்கன்னா அந்த விஷயத்துல இருந்து தூரம் ஆயிடுவோம். அதே போல பாசிட்டிவ்ல நெருக்கமா இருங்க, நெகட்டிவ்ல இருந்து தூரம் இருக்கக்கூடியவங்களா இருங்க. அமிர்த வேலை கரெக்டா இருக்கணும், முரளி கரெக்டா இருக்கணும், தாரணா, சேவா, இந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கணும். ஸ்திதி நல்லா இருக்கணும், சுய சிந்தனை செய்பவரா இருக்கணும். யாரு பர சிந்தனை பண்றாங்க அவங்களோட யோகா எப்படி இருக்கும், யாரு பர சிந்தனை பண்றாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து நாம தூரம் இருக்கணும். இந்த விஷயத்துல அண்டர்லைன் பண்ண சொல்றாங்க. 2024 1 மந்த்ல முடியுது, அசரீரி நாம ஆகணும். 2025ல நாம அச்சா சிந்தன், சுய சிந்தன், ஞான சிந்தன் செய்பவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். कई बार बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन आज वो यज्ञ में है ही नहीं, चले गए। क्यों गए और कहाँ गए? उन्होंने, मैं खुद भी 40 साल से इस बाबा के यज्ञ में हूँ, चल रहा हूँ। मैं भी कई अच्छे अच्छे भाई बहनों को देखा, बहुत सेवा करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन वो आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी को, दूसरों को देखा, दूसरों को देखा, वो चले गए। इसीलिए आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। कई आजकल अलग अलग ग्रुप बना करके चले, क्यों गए? अपना घाटा हो गया। क्यों? यहाँ पर चिंतन देखा। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अगर आनंद लेना है, किसी के दोष देखने के चश्मे को उतार दो, सभी की अच्छाई देखो, अच्छे संस्कार देखो। பிறருடைய குறை பார்க்க கூடாது, பிறருடைய குறை பார்க்க கூடாது.
சுதர்சன சக்கரதாரியா இருக்கணும். இப்ப சுய தர்ஷனம் சுய சிந்தன் அப்படின்னா மாயாஜீத். யாரு பரதர்ஷன் அந்த உல்டாவா சக்கரம் சுத்துது அவங்க தலையை கட் பண்ணிரும். சுய தர்ஷன் கரெக்டா இருக்கு, மாயாஜீத் ஆயிடுவாங்க. அப்ப பிறரை பார்க்காதீங்க, நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. 40 வருஷமா ஞானத்துல இருக்காங்க, 30 வருஷமா இருக்காங்க, எவ்வளவு யோகா பண்றாங்க, சேவா பண்றாங்க. ஆனால் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? ஸ்திதி, யோகா, மனநிலை, மாயாஜீத் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? அதற்கு முயற்சி பண்ணணும், பிறரை பார்க்க கூடாது. एक सत्संग चलता था और उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में एक मांत्रिक डंडा देता हूँ, छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो। तो शिष्य को क्या क्या गुरुजी ने वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। ஒரு குருஜிட்ட ஒருத்தர் வரம் கேட்கிறாரு, சிஷியர் இருப்பார் இல்லையா, அவர் வரம் கேட்கிறாரு, என்னோட உள்ளத்துல என்ன நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றத நான் பார்க்கணும், அப்படி ஒவ்வொருத்தரோட உள்ளத்துலயும் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வரமா கேட்கிறாரு. एक सत्संग चलता था, उसमें वो शिष्य आता था। तो छड़ी दिया, वरदान दी, कहा कि किसी के दिल में जो भी कुछ चलता है तुम्हारे बारे में, अगर वो जानना है उस व्यक्ति का नाम लो, और जो छड़ी दिया था मंत्र मांत्रिक डंडा वो दिल में रखो, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी लेकर के वो चला गया। ஒரு சத்சங்கம், அந்த சத்சங்கத்துல ஒரு குரு இருக்காரு, நிறைய சீடர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அதுல ஒருத்தர் வந்தவர் கேட்கிறாரு, எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்க, என்னை பற்றி பிறர் என்ன நினைக்கிறாங்க அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 2 பேர் 20 பேரு नहीं आ रहे ना? ऑडियो नहीं आ रहा है, ये सत्संग का है ना, सत्संग का स्टोरी। हाँ स्टोरी भाई जी। हाँ, मैं बता रहा था। फिर जैसे वो रास्ते में अचानक क्या होता है, गुरुजी शिष्य रुक गया। पहले मैं वो सोचता है कि मैं पहले गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में लगा कर गए, तो गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अरे गुरु के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरु बना करके क्या फ़ायदा। सत्संग में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरु शिष्य सत्संग में आना ही बंद हो गया। तो एक दिन गुरुजी के मन में आता है अरे सबसे पहले आने वाला, सबसे अच्छी सेवा करने वाला, सबसे आगे बैठने वाला, इसको क्या हुआ। गुरुजी उसके खुद घर में गए। ओके भाई जी, छड़ी माना मांत्रिक डंडा। ஓகே ஓகே। हाँ ஒரு சத்சங்கம் நடக்குது, அந்த சத்சங்கத்துல ஒரு குரு இருக்கிறாரு, அங்க வரக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அதுல ஒருத்தர் கேக்குறாரு, என்னை பற்றி பிறர் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் தெரிஞ்சுக்கணும். உடனே அவர் மந்திர கோல் கொடுத்தாராமா, இதோ உன் மேல வச்சுக்கணும், உன்னோட இப்படி மனசுல இப்படி வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன நினைக்கிறியோ, இவங்க என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தாட் பண்ணேன்னா உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி குரு அந்த மனிதர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அவரும் வாங்கிக்கிறாரு. வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணாரா, குருவை பத்தியே நினைச்சாராம், அந்த குரு என்னை பற்றி என்ன நினைக்கின்றார் அப்படின்னு நினைச்சாராம். அவருக்கு ஒரு பதில் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா. அவர் அதுக்கப்புறம் சத்சங்கத்துக்கு வரல, இவர் தேடுறாரு குரு। जब उसने देखा अरे गुरु के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, तो सत्संग में आना बंद हो गया। तो गुरु उसके घर में गए, पूछे क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षाएं, आजकल ठंडी बहुत चल रहे हैं, आजकल मेरी तबीयत थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, और आजकल थोड़ा घर में मेहमान आ रहे हैं और खेती बाड़ी का थोड़ा काम है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए आप हमेशा आते थे। नहीं गुरुजी, नहीं ज़रूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता हूँ। இப்போ அந்த குரு இவர் ஏன் வரல அப்படின்னு தேடிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போறாரு. அங்க வீட்டுல போய் கேக்குறாரு, ஏன் நீ வரல சத்சங்கத்துக்கு? இப்போ 5 வருஷம் 6 வருஷம் 7 வருஷமா வந்துட்டே இருக்கிறவரு திடீர்னு வரலன்னு உடனே கேட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல கொஞ்சம் வேலை இருந்தது அதனால வரல அப்படின்னே சொல்லிடுறாரு. இல்ல நீ உண்மையை சொல்லுன்னு சொன்ன உடனே, இல்ல என்னை பற்றி நீங்களே என்ன ஒண்ணு நினைச்சீங்க,
நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனால வரல அப்படின்னு சொல்றாரு. तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है, कहा कि नहीं देखा। देखो तो शिष्य ने छड़ी को दिल में अपने खुद के दिल में लगाया, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी खुद की पूरी काली। तो अपनी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी शुरू में जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके साधना करके दान पुण्य करते इतना बचा है, अभी मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफ़ेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य हाथ जोड़ कर कहता है गुरुजी आज मैंने कितनी भूल करने जा रहा था, आज से। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना, आज से देखना है तो बड़ों की अच्छाई देखो, कमजोरी मत देखना। फिर दोबारा उसी से सत्संग में आना शुरू हो जाता है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। ஒரு கதை சொல்றாங்க. எப்படி பார்க்க ஒரு சத்சங்கம் இருக்கு, அங்க ஒரு குரு இருக்காரு, அங்க நிறைய பேர் வர்றாங்க. அதுல ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, என்னை பற்றி பிறர் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் தெரிஞ்சுக்கணும். உடனே குரு வந்து ஒரு மந்திர கோல் கொடுக்கறாரு. இத உன்னோட மேல வச்சுட்டு நீ மந்திரம் சொன்னேன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ தெரிஞ்சிரும். உடனே அவர் வந்து அவரோட குருவோட பேரையே சொல்றாரு. நம்மளை பத்தி இப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் சத்சங்கத்துக்கு வரல. அவரை தேடி குரு போறாரு, போயிட்டு கேக்குறாரு, இல்ல என்னை பத்தி நீங்க ஒன்று நினைக்கிறீங்க, அதனால எனக்கு வர பிடிக்கல அப்படி சொல்றாரு. அப்படியா, சரி இப்ப நீ உன்னோட பேரே சொல்லு, அந்த மந்திரக்கோளை வச்சுட்டு உன்னோட பேரே சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி மந்திரக்கோளை தன் மேல வச்சுட்டு அவர் அவரோட பேரே சொல்றாரு. மந்திரக்கோளை காணாம போயிடுது. அந்த அளவுக்கு அவரை பற்றி அவருக்கே நெகட்டிவ் தாட் இருக்கு. அப்போ குரு சொல்றாரு சுய சிந்தனை பண்ணு, நல்ல அச்சா சிந்தனை, நல்ல சிந்தனை பண்ணு, பிறருடைய பலகீனங்களை பார்ப்பது, தன்னோட பலகீனங்களை பார்க்கிறது, இந்த விஷயத்துல இருந்து விடுபடு. இப்படிதான் எனக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்தது, நான் தவம் பண்ணி இப்ப குரு ஆயிருக்கேன், நீயும் நல்ல சிந்தனை செய்யக்கூடியவங்களாகுன்னு குரு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. तो ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यहाँ शुरू में आए थे। जैसे यहाँ आना शुरू करते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, भाइयों के संपर्क में आएंगे, मधुवन के संपर्क में आएंगे। जब हम शुरू में आए थे हमारी आत्मा पूरी खाली थी, हमारी छड़ी पूरी खाली थी। लेकिन जैसे ही हम आते सेवा में सेवा करते, योग लगाते, तन मन धन से सेवा करते, जो हमारी काली आत्माएं, पतित आत्माएं पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे नज़दीक बहनों के सेंटर में आएंगे, नज़दीक आएंगे सेवा में, तो कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज़्यादा आगे करते हैं, फलाने भाई जी ऐसे हैं, उस मधुबन में ऐसा चलता है, उस सेंटर में भी इतनी पुराने, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे और भावना बिगाड़ देंगे। और एक बार भावना बिगड़ गई तो जो पहले करते थे, जो सेवा करते थे, खत्म। हाँ, कभी कभी तो यहाँ आना ही बंद करेंगे। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो जो आपकी सफ़ेद छड़ी बन रही थी, पावन बन रही थी, धीरे धीरे पतित बनना। आज जिस बुराई, बहनों की बुराई देख रहे हैं, जिस सेंटर की कमियां देख रहे हैं, आज वो कितना दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी त्याग किया, उनकी सफ़ेद छड़ी कितने वो नहीं देखी। अगर किसी भाई बहनों को देखना है उन्होंने कितनी सेवा की होगा, कितना, ये देखो। छोटी सी कमी को देख करके कभी भावना को खराब नहीं करना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में देखते हुए भी न देखो, इसलिए वो क्यों क्या करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। इसलिए पर चिंतन से मुक्त बनना। आज जिसकी बुराई देख रहे हो तो योग लगा रहे हैं, अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर आप खुद ही नहीं आएंगे तो आपकी जो सफ़ेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। इसलिए पर चिंतन की माया आज हमें ब्राह्मण परिवार से दूर कराते हैं। तो ये परचिंतन करने का समय नहीं। इसीलिए इस नए साल में हम प्लानिंग बनाना है, किसी के भी दोष नहीं देखना। அடுத்து சொல்றாங்க சுய சிந்தனை செய்யணும், ஞான சிந்தனை செய்யணும். நமக்கு பாபா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. சுய சிந்தன் அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் சுய சிந்தன், பிற சிந்தன், பரச்சிந்தன், பரதர்ஷன் அது கிடையாது. அதே போல சுப சிந்தன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுபம் மட்டும் இருக்கணும், பாக்கி அசுபம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதே போல சுய சிந்தனை செய்யும் பொழுது, சுய தர்ஷன் செய்யும் பொழுது, சுய பரிவர்த்தன் செய்யும் பொழுது யோகா, ஞானம், சேவா, தூய்மையாகிறது, பாபா கிட்ட சுகம், சாந்தி, சக்தியை அனுபவம் பண்றது, இது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும். யாரு பிறரை பார்க்கிறாங்க அவங்க எப்படி யோகா பண்றது, சேவா பண்றது, தூய்மையாகிறது
பண்றது, பாபாவுடைய அன்ப சக்தியை அனுபவம் பண்றது, இந்த விஷயங்கள்ல எப்படி இருப்பாங்க? அப்ப நாம சுய சிந்தனை பண்றவங்களா, சுய பரிவர்த்தனை பண்றவங்களா இருக்கணும். இந்த 1 மந்த்ல நாம பரச்சிந்தனையிலிருந்து விடுபட்டவராகணும். சுய சிந்தனை தான் செய்யணும். அதை இப்பவே முடிவு பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி பாய்வி சொல்லிட்டே இருக்காங்க. जो परचिंतन करता है, जिसका परचिंतन करता है, दोपहर में उसका भगत बनना पड़ेगा। जैसे अभी तो हम मंदिर में जाते थे, भजन मंडली करते थे, भजन पता नहीं तमिलनाडु हर शहरों में तो भजन तो होते रहते हैं। भजन क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है, कोई देवी की या देवता की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है, पीछे से ढोल बजाता है, डपला बजाता है, तीसरा क्या करता है, मजार बजाता है, और 2-4 जन क्या करते हैं, 10-12 लोग सुनते हैं उस भजन को। हाँ, तो यहाँ 1 घंटा किसी का परिचिंतन करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है। हाँ, तो इन 4-5 लोगों को जिसके परिचिंतन करेगा उसका दोपहर में तो मंदिर बनेगा। जिस शहर में मंदिर बनेगा उन 10-12 लोगों को उसी मंदिर में जा कर के जिसने ये कहेगी वो है ऐसी, वो क्या कहेंगी, हे देवी तो बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया वो ढोलक बजाएगा पीछे से, जिसने कहा वो ऐसी करते रहते वो टाल बजाएंगे, और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था वो सुना था, भावना बिगड़ती, वो भजन सुन करके भावना अच्छी करेंगे। इसीलिए अगर हमें भजन करना ही है, 2-4 जन मिलो, बाबा का चिंतन करो, आज बाबा ने ऐसा मुरली सुनाया, आज बाबा ने ये बोला, तो इसलिए इससे बचना। भक्ति में भजन महिमा गाते थे, हाँ, जोर से, बहुत जोर से अय्यप्पन महिमा, हाँ, देवी की महिमा गाते थे। हाँ, वो महिमा सुनकर के भक्त भी अनुभव करते थे। हाँ, लेकिन अभी सुय चिंतन नहीं करते, वो को भजन आजकल करते हैं। आजकल क्या करते हैं, गली गली में गए बैठ करके फलाना मंत्री ऐसा है, फलाना सरपंच ऐसा है, वो भजन मंडली चलती है। हाँ, आजकल तो वो नहीं करते। आजकल वो ये उसमें पहले तो चलो वो फिर भी ठीक है देवी देवता के, लेकिन आजकल वो फलाने मोदी जी ऐसे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो आप जा करके 4-5 लोग बैठे हैं ना, पत्ते खेलते खेलते वो चलता रहता है उनका। इसलिए ऐसे भजन मंडली में हमें शामिल नहीं होना है। हमें ज्ञान का चिंतन, बाबा का चिंतन। நாம ஞான சிந்தனை, பாபா சிந்தனை செய்பவராக இருக்க வேண்டும். நாம ஞான சிந்தனை, பாபா சிந்தனை, பரமாத்மா சிந்தனை, ஞான சிந்தனை, சுய சிந்தனை இப்படி செய்பவரா இருக்கணும். பாருங்க, கோவில்ல கூட பஜனை பாடுறாங்க, இந்த தேவியை நினைச்சு, இப்ப ஜெய ஜெய தேவி, துர்கா தேவி அப்படிலாம் நல்லா கத்தி ஜோரா ஐயப்பன் கோயில்ல, தேவிதா கோயில்ல மகிமை பாடுவாங்க இல்லையா? அப்படி மகிமை பாடுறாங்க. ஆனால் இப்பொழுதுக்கு ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்களா, இப்ப மந்திரி இருக்காங்க, ஏதாவது பதவியில இருக்காங்க, அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதோட குறைய பேசக்கூடியவங்களா 2 பேர், 5 பேர், 10 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 10 பேர் அப்படி பேசுறாங்கன்னா யாரு குறை பேசுறாங்க, குறைக்கு தகுதியானவங்களா இருக்காங்க, அப்படி நாம இருக்கக்கூடாது. எந்த கோவில்ல பஜனைக்கு மகிமைக்கு தகுதியானவங்களா இருக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்ட தேவியாக தேவதாவாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஞான சிந்தனை செய்ய வேண்டும், சுய சிந்தனை செய்ய வேண்டும். तो आज ये स्पेशल, ये खास नए साल के लिए धारणा का बातें थी। तो 2 ही मैंने स्टोरी सुनाई, मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है। धुआं नहीं निकालना, कान में उल्टी ना करना, और पीछे का थैला आगे नहीं लेना, हाँ जी करके। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला। मैंने देखता था दादी कभी भी किसी की व्यर्थ बातें सुनती ही नहीं थी। अगर दादी को कोई सुनाता था ना, दादी सिर को पकड़ के हाजी भी नहीं करती थी, नाजी भी नहीं करती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई जब सुनाता है उसको सहयोग देते हैं। अच्छा और क्या हुआ, वो सुना करके अपना पाप तो जमा कर रहे हैं, लेकिन हम हाजी करके क्या कर रहे हैं, उसमें सहयोग दे रहे हैं। जैसे कल बाबा ने कहा था, ये शरीर सारे खजाने ये बाप की दी हुई संपत्ति है, अमानत है। तो आज हमारा शरीर भी बाबा का अमानत है। ये परिचिंतन करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैंने मुख का दुरुपयोग कर रहा हूँ। कान में व्यर्थ सुनने के लिए बाबा ने ये कान नहीं दिया है।
इसलिए मुरली सुनने के लिए कान दिए, तो इसलिए इस अमानत को करने में, परचिंतन सुनने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए पक्की धारणा करनी है और इस परचिंतन से मुक्त बनना है, हमारा टाइम बहुत सफल रहेगा। ठीक है, ओम शांति।